I hope I am audible. Yes, sir. Okay, so today we will study a new method which is known as Newton's method. This is another iterative method that is widely used to find roots of nonlinear equation. So likewise, before we consider a root finding problem, fx equals 0. So what is called root? If I draw the sketch of function. So this is my y equal to fx. This is root alpha. So let us start with one initial guess. Take a point nearby. So this is curve. So take a point x0 like maybe here. So this is x0. Initial guess. Then draw a tangent at this point. Okay, so let us denote intersection of this tangent with x-axis at x1. Then go back on curve at x1. Then again draw tangent at x1. Okay, so that intersection point is x2 and so on. So this intersection of tangent is next approximation of root. So what we do, we take a point, say x0, fx0 on the curve. Then equation of tangent at this point is, so what is equation of tangent? Y minus y0 यानी कि fx0 equal to slope. You can write slope in term of derivative. So dy by dx. Yeah, f dash that will be slope of tangent at x0. Then x minus x0. Okay, so we draw tangent at this point. Then this tangent intersect x-axis at x1, and you can find x1. Okay, so let this tangent meets or intersects x-axis at x1 comma 0. Y coordinate will be 0. So then fit y will be 0 and x equal to x1. तो यहाँ से x1 निकाल लो, f डैश को इधर ले जाओ, डिवाइड कर दो, x0 को भी इधर ले आओ लेफ्ट. So solve for x1 which is x0 minus fx0 divided by f dash x0, and then repeat the procedure. Okay, so then draw tangent at x1. It will meet x-axis at some point, say at x2. Then you can find x2. What will be x2? X2 will be same formula. X2 will be x1 minus fx1 by f dash x1, and repeat the procedure. And when you will be near root, this equals to this, so fx will be 0 at that point. So this x0 is initial guess, where
x0 is an initial approximation of root. Initial approximation of root. So we repeat the procedure. Iterate है, so iterate करना है, for you repeat the procedure. And in general you can write iterative scheme. अब बार बार लिखते जाओ तो x2 में x1 यूज होगा, xn plus 1 में xn and fxn divided by f dash xn. N is the number 0, 1, 2, etc. And this is called Newton's method. So few remarks. Number one, stopping criteria. So iterative है तो stopping criteria आप यूज करोगे, that you can use anything that we did before to any trait like secant, एब्सोल्यूट एरर की टर्म में लिख सकते हो और रिलेटिव की भी लिख सकते हो। दूसरा है न्यूटन एज सीकेंट, न्यूटन्स मेथड फ्रॉम सीकेंट हमने कल भी डिस्कस किया था। यू कैन ऑब्टेन न्यूटन फ्रॉम सीकेंट। तो सीकेंट की जो इटरेट थे, सीकेंट जो इटरेशंस थी वो थी xn plus 1 equal to xn minus xn minus 1, नीचे fxn minus fxn minus 1. Okay, so I can write it in this form. fxn ऊपर रहेगा, नीचे फंक्शन इसको नीचे लिख लो xn minus 1. और अगर आप मैथमेटिकली देखो तो वहां पे आपने क्या बनाया था, सीकेंट लाइन है ना, सीकेंट लाइन 2 पॉइंट लिए थे x0 और x1। अब ये एक पॉइंट दूसरे पे अगर आ जाए तो जो सीकेंट है वो टेंजेंट बन जाएगा, और टेंजेंट की डेफिनेशन भी यही है। सो दिस इज द लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट। अगर दोनों पॉइंट सेम बन जाएंगे तो आप इसको सीकेंट को टेंजेंट भी कह सकते हैं। तो इसमें लिमिट लगा दो। सो इन लिमिटिंग केस दोनों पॉइंट सेम बन जाए, यानी कि जो xn minus 1 है वो xn बन जाए in limiting case, then secant will be tangent, then secant line will be tangent at xn. So in that case, अब ये पॉइंट बिल्कुल पास पास है ना, xn, तो डेरिवेटिव भी तो आप यही लिखते हो, फंक्शन कितना चेंज हुआ है ना, और नीचे चेंज से डिवाइड करते हो आप, और आप कहते हो कि चेंज बहुत स्मॉल है, h goes to 0। तो यहाँ पे भी ये दोनों पॉइंट बिल्कुल पास पास हैं, तो जो रेशियो से डिवाइड कर रहे हो वो दैट विल बी वेरी स्मॉल। तो फंक्शन चेंज डिवाइड बाय दैट x चेंज, दैट कैन बी अप्रोक्सीमेटेड बाय डेरिवेटिव। और अगर आप ज्योमेट्रिकली वैसे देखोगे तो ये सीकेंट लाइन का स्लोप है। सीकेंट लाइन का स्लोप कैसे निकालते हो, लाइन का स्लोप कैसे निकालते हो, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस डिवाइड बाय x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, ऐसे निकालते हैं स्लोप, y2 minus y1 डिवाइड बाय x2 minus x1। ये सीकेंट लाइन का स्लोप है। जब सीकेंट टेंजेंट बन जाएगा तो स्लोप को आप dy by dx भी लिख सकते हो, तो ये डेरिवेटिव बन जाएगा फिर जो रेशियो। तो इसको आप लिख सकते हो रेशियो को। सो यू कैन इन लिमिटिंग केस यू कैन राइट दिस, जो सीकेंट का स्लोप है उसको आप डेरिवेटिव लिख सकते हो।
So this is my Newton's method. So you can obtain, तो मैथमेटिकली दोनों सेम है, ठीक है, मैथमेटिकली कह रहा हूं, मैथमेटिकली दोनों सेम है, बट अप्लाई करने में थोड़ा सा डिफरेंट है। सीकेंट को अप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल है, आपको ये रेशियो निकालना पड़ेगा हर बार, एंड मैक्सिमम टाइम ये फेल भी होता है मेथड ये, ड्यू टू दीज रेशियो कि ये दोनों इक्वल बन जाएंगे, सो दैट विल बी 0/0 फॉर्म। और प्रोवाइडेड ये डेरिवेटिव 0 हो, है ना, तो डेरिवेटिव 0 कब होगा? ज्योमेट्रिकली कौन से पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 होता है? करा है भी ऐसे आपका इन पॉइंट्स पे जिसमें टेंजेंट पैरेलल होगी एक्स एक्सिस के, then dy by dx will be 0. So don't take initial guess इन पॉइंट्स पे, आपने इनिशियल गैस नहीं लेना इन पे। इन दैट केस डेरिवेटिव विल बी 0 एंड यू कैन नॉट डिवाइड विद 0। वो हम पढ़ेंगे केस ऑफ फेलर, ये फेल भी होगा, कब होगा। नेक्स्ट पॉइंट है न्यूटन एज फिक्स पॉइंट, न्यूटन्स मेथड एज फिक्स्ड पॉइंट। अब न्यूटन फिक्स पॉइंट मैंने कहा था एक ब्रॉड कैटेगरी है, बहुत सारे आप जी लिख सकते हो। तो हमने न्यूटन को ही फिक्स पॉइंट क्यों कहा है? क्योंकि ये सेम है, एक कैटेगरी वाले हैं, कि सिमिलरिटी क्या है कि इधर एक लेवल ज्यादा है, इधर एक कम है, xn+1 इक्वल टू सम xn। सीकेंट को आप नहीं कह सकते क्योंकि सीकेंट में 3 पॉइंट हैं, इधर xn+1 है, इधर 2 हैं इधर, तो ये सिमिलरिटी नहीं है। 2 इनिशियल गैस वाला है, फिक्स पॉइंट 1 वाला है, और बाइसेक्शन भी नहीं कह सकते, बाइसेक्शन भी 2 वाला है। तो 2 वाले हैं बाइसेक्शन और सीकेंट, और एक एक वाला है, एक इनिशियल गैस वाला है न्यूटन और फिक्स पॉइंट। सो यू कैन थिंक न्यूटन एज फिक्स्ड पॉइंट। तो न्यूटन हमने ये लिखा है, और फिक्स पॉइंट में क्या होता है? xn+1 इक्वल टू g ऑफ xn। सो यू कैन टेक g x minus fx by f dash x. So in that sense it is fixed point. ठीक है, तो अगर आपने कन्वर्जेंस चेक करना हो तो वो भी हम इसमें चेक कर सकते हैं, न्यूटन एज फिक्स पॉइंट। अगर आपने कन्वर्जेंस चेक करना हो, क्योंकि हमने पहले चेक कर लिया फिक्स पॉइंट का, न्यूटन्स मेथड एज फिक्स पॉइंट। वो भी हम चेक कर सकते हैं। तो gx क्या लेंगे हम? x माइनस f बाई f डैश x, ठीक है। तो फिक्स पॉइंट की कन्वर्जेंस का ऑर्डर कैसे निकालते हैं? ध्यान है, भूल गए? अब डेरिवेटिव निकालते हो जी का। यस सर। अगर डेरिवेटिव 1 से छोटा हो तो ठीक है, कन्वर्ज करेगा, और उसमें भी फर्दर था 1 से छोटा हो, और अगर 0 हो तो बहुत अच्छी बात है, आपको कन्वर्जेंस का ऑर्डर ज्यादा मिलेगा। तो इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं और रूट पे निकाल लेंगे डेरिवेटिव क्या आएगा, ठीक है। g डैश x निकालो, तो x का डेरिवेटिव 1 हो गया, f बाई f डैश पे वो लगा लो u अपॉन v,
एफ डैश एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स माइनस एफ एफ डबल डैश एक्स, डेरिवेटिव कर दो, एलसीएम लोगे तो ये एक टर्म कैंसिल हो जाएगा, सो यू गॉट एफ डबल डैश एक्स अपॉन एफ डैश एक्स स्क्वायर। सो अगर अल्फा रूट है, इफ अल्फा इज रूट देन एफ अल्फा विल बी 0। तो जी डैश रूट पे कितना आएगा, जी डैश अल्फा। देखो ये न्यूटन में एफ डैश तो नॉन जीरो होता ही है, ये एफ अल्फा 0 है तो जी डैश अल्फा भी 0 आएगा। 0 है, ठीक है, 1 से छोटा है, अच्छी बात है नहीं। सर एक बार दोबारा बता दो। फिक्स पॉइंट मेथड कन्वर्ज कब करता है, जब डेरिवेटिव 1 से छोटा हो। तो हमने जी एक्स लिखा है, मतलब न्यूटन को फिक्स पॉइंट की फॉर्म में लिखा है, तो जी एक्स क्या बनेगा, एक्स माइनस एफ बाई एफ डैश। इसको डिफरेंशिएट किया, डेरिवेटिव किया, एक्स का 1 आ गया, एफ बाई एफ डैश को यू अपॉन वी रूल से डिफरेंशिएट कर दिया। सर अगर अल्फा रूट है, अब आप रूट फिट कर दो ना, अल्फा रूट है तो एफ अल्फा 0 बन जाएगा ना, रूट यही होता है फंक्शन को 0 करने वाला। हाँ जी सर। तो जी डैश अल्फा भी अच्छा। 0 आ गया, तो 0 1 से छोटा ही है। यस सर। और अच्छी बात है ये आया है, हमने फिक्स पॉइंट में पढ़ा था, अगर डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो तो आप सेकंड चेक करोगे, और अगर सेकंड डेरिवेटिव 0 हो तो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस 2 होगा, तो साथ ही साथ सेकंड डेरिवेटिव भी निकाल लो। वो कैसे निकालोगे, इसी को एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, और उसमें सेकंड डेरिवेटिव निकाल के रूट फिट करना है। सीधा फिट कर दें, 3 फंक्शन है, अब प्रोडक्ट रूल लगाओ, प्रोडक्ट रूल लगाओ, 3 फंक्शन है, ठीक है। पहले एफ का डेरिवेटिव आएगा एफ डैश, एक्स को अल्फा फिट करो। सर एफ ऑफ अल्फा अगर 0 है तो जी डैश ऑफ अल्फा 0 क्यों होगा, मतलब ये बात नहीं है बस। ये इसके इक्वल नहीं है, अच्छा ठीक है सर। राइट हैंड साइड 0 तो लेफ्ट हैंड साइड भी 0 होगी। ठीक है सर ठीक है। अब इसको 2 बार डिफरेंशिएट कर दो, इसको एक बार और कर दो। तो मैं प्रोडक्ट रूल से कर रहा हूं, पहले एफ का करोगे एफ डैश आएगा, एक नीचे एफ डैश कैंसिल हो जाएगा, तो एफ डबल डैश एक्स की जगह अल्फा डिवाइड बाय एफ डैश अल्फा, फर्स्ट टर्म ये आएगी। सेकंड टर्म जब लिखोगे आप, सेकंड टर्म में इसको छोड़ दोगे आप, है ना, इसका डेरिवेटिव करोगे थर्ड, बट साथ में ये एफ रहेगा, एफ में अल्फा फिट करोगे 0 बन जाएगा। फिर इसका डेरिवेटिव करोगे तो भी ये प्रेजेंट रहेगा, तो भी 0 आ जाएगा। तो एक ही टर्म बचेगी जब इसका f का डेरिवेटिव होगा फर्स्ट वाले का। तो सेकंड डेरिवेटिव ये आ गया f डबल डैश। अब f डबल डैश पे डिपेंड करेगा, अगर ये नॉन जीरो है, इफ f डबल डैश अल्फा नॉन जीरो, देन ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस इज 2। तो कहने का मीनिंग है, न्यूटन का मिनिमम ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस वो 2 है। और अगर ये भी 0 हो जाए, अब इसका तो हमें नहीं पता ना सेकंड डेरिवेटिव का, वो तो फंक्शन पे डिपेंड करेगा। अगर ये भी 0 हो तो आप थर्ड डेरिवेटिव निकालोगे तो आपको 3 ऑर्डर का कन्वर्जेंस मिलेगा। सो इन अदर वर्ड्स, न्यूटन्स मेथड विल गिव यू मिनिमम सेकंड ऑर्डर कन्वर्जेंस। तो जो हमने अभी तक मेथड पढ़े हैं, बाइसेक्शन का 1 होता है, सेकंड का हमने वैसे पढ़ा नहीं है बट वो 1.6 है, न्यूटन का 2 है, तो ये सबसे फास्ट है। और फिक्स पॉइंट का वेरी करता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, एंड सो ऑन।
और अगर आप यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रिमार्क है, अगर आप फिक्स पॉइंट में कुछ और पता ना लगे, अगर आप ये जी लिखोगे, कौन सा जी, ये वाला एक्स माइनस, जो कि न्यूटन मेथड ही है एक्चुअली, तो इसमें आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, डेरिवेटिव हमेशा ही जीरो आएगा, वो हमने प्रूव कर दिया ऊपर, यानी कि डेरिवेटिव विल ऑलवेज लेस देन 1, सो नो नीड टू चेक इफ यू राइट दिस जी। ठीक है, एनी क्वेश्चन? तो न्यूटन मेथड मिनिमम आपको सेकंड ऑर्डर कन्वर्जेंस देगा। तो नाउ वी विल कम टू some problems, how you solve, how you apply this method. For example, ये important problem है, how you find reciprocal of any number using Newton's method. तो क्वेश्चन ये है कि you have a calculator which is defective. It means it can only add, subtract and multiply, डिवाइड नहीं कर सकता ये। तो क्वेश्चन है यूजिंग न्यूटन्स मेथड and this calculator, find 1 by 1.37 correct to 5 decimal places. कहने का मीनिंग है कि आप सीधा कैलकुलेटर लेके 1 बाई नहीं निकालना आपने, क्योंकि आपका कैलकुलेटर डिवाइड कर ही नहीं सकता, वो क्या कर सकता है, प्लस माइनस और मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले आपने नॉन लीनियर प्रॉब्लम, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, अगर आपने स्क्वायर रूट निकालना है तो इसको सॉर्ट आउट करोगे, स्क्वायर करोगे। अगर आपने रेसिप्रोकल निकालना है तो रेसिप्रोकल को खत्म करोगे पहले। अब वो खत्म कैसे होगा, उल्टा कर दो उसका, पहले एक्सपोज कर लो जो आपने फाइंड करना है। तो इसको खत्म कैसे करोगे, 1 बाई एक्स इक्वल टू 1.37। ओके, अब आपने एफ एक्स लिखना है, एफ एक्स इक्वल टू 0। सर क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वल टू 0 भी तो कर सकते हैं। वो बताता हूं अभी क्यों नहीं करना। तो ये आपकी बनेगी इक्वेशन ये। अगर आप, ये नॉन लीनियर इक्वेशन है 1 बाई, अगर आप लीनियर लेके चलते हो, लीनियर, कई बार बच्चे ये भी करते हैं, ये ले लूं मैं यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो अगर आप इस पे न्यूटन लगाओगे तो इटरेट जो बनेगी एक्स एन प्लस 1 इक्वल टू एक्स एन, ये आपका एफ एक्स है, डेरिवेटिव इसका 1 होगा, ये कैंसिल हो गया तो यही आ गया। सो एक्स एन प्लस 1 इक्वल टू 1 बाई 1.37, तो यही तो हमने निकालना था। सो यू डोंट हैव एनी इटरेटिव स्कीम। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन नहीं लेनी आपने। दूसरा आप जो कह रहे थे 1.37 एक्स माइनस, ये कह रहे थे, अगर ये लेके चलोगे
1.37 x माइनस 1, डेरिवेटिव आ जाएगा 1.37 xn। अब मल्टीप्लाई करो, ये फिर कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1.37 xn माइनस 1.37 xn प्लस 1 डिवाइड, ये आ जाएगा। सो अगेन 1 बाई, जो निकालना है आप वही। सो फ्रॉम लीनियर इक्वेशन, ये लीनियर है, फ्रॉम लीनियर इक्वेशन यू वांट टू गेट एनी इटरेटिव स्कीम। अगर नॉन लीनियर है तो ही मिलेगा आपको, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव कर लो, विच इज माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो न्यूटन इटरेशंस क्या होंगे? न्यूटन इटरेशंस आर, अब इसमें देखो अपने आप सॉर्ट आउट भी हो जाएगा जो कैलकुलेटर का प्रॉब्लम था, एक्स एन माइनस एफ एक्स एन बाई एफ डैश एक्स एन। एफ एक्स एन फिट कर दो, डेरिवेटिव माइनस 1 बाई एक्स एन स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऊपर ले जाइए, सिंप्लीफाई करो इसको। आप देखोगे ऑटोमेटिकली ये बनेगा कॉम 2 माइनस 1.37 एक्स एन, माइनस माइनस प्लस, एक्स एन 2 एक्स एन हो जाएगा और माइनस 1.37 एक्स एन स्क्वायर। तो ऑटोमेटिकली डिवीजन कैंसिल हो गया। नाउ नाउ योर इटरेटिव स्कीम ओनली हैज प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, so that you can do with your calculator, okay। तो अब इनिशियल गैस लेना है आपने, वो आप साइन चेंज से देख सकते हो, या रफली आपको पता ही है कि 1 बाई 1.37 क्या होगा, 1 के 0 पॉइंट समथिंग होगा। यू कैन स्टार्ट विद 0.5, 0.1, किसी से भी शुरू कर लो आप। तो आई एम स्टार्टिंग विद 1 से शुरू कर रहा हूँ। यू कैन स्टार्ट विद एनीथिंग। जो पहला आंसर है इसमें डाल दो वैल्यू 1, 2 माइनस 1.371, पहला आंसर है 0.63। फिर इसको डाल दो आंसर को इटरेटिव स्कीम में, 0.63, 2 माइनस 1.37 मल्टीप्लाई बाई 0.63, दैट कम्स आउट 0.716247 एंड सो ऑन। अब इसको आंसर को फिर डाल दो, 0.7296700622। उसने कहा कि करेक्ट टू 5 डेसिमल करना है, तो 5 डेसिमल मैच करना है आपने, अभी नहीं हुए। फोर्थ का आएगा 99269117, सो यू हैव 3 डिजिट मैचिंग। x5 जो है 27007, इसमें 5 डिजिट मैच है, 5 डेसिमल, ओके। सो रूट correct to 5 decimals is this 0.729992, okay। So in that way you can use Newton's method
कुछ प्रॉब्लम इम्पोर्टेंट हैं जिसमें यूजुअली स्टूडेंट को डायरेक्ट प्रॉब्लम होती है रूट निकालना, इसमें तो आप एफ एक्स लिख लोगे। और स्क्वायर रूट और इनवर्स रेसिप्रोकल, इसमें बहुत स्टूडेंट एग्जाम में भी गलती करते हैं। दे स्टार्ट विद लीनियर इक्वेशन। तो अगर आपने स्क्वायर रूट निकालना है तो पहले स्क्वायर रूट को सॉर्ट आउट करना है, पहले आपने स्क्वायर करना है। सिमिलरली अगर आपने रेसिप्रोकल निकालना है तो पहले रेसिप्रोकल को गायब करना है। सो यू विल रिवर्स बोथ साइड्स, सो यू विल डू 1/x। तो रेसिप्रोकल में 1/x करना है और स्क्वायर रूट में आपने स्क्वायर करना है x स्क्वायर। सो दैट you must remember, if you start with linear equations you won't get any iterative scheme। बच्चे क्या करते हैं, लीनियर लिखा, लास्ट में वही आ गया 1/1.37, उसको कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई कर दिया। तो ये एम नहीं है। अगर आप कैलकुलेटर यूज करना है तो फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं है फिर तो। ठीक है जी। So let's take one more example. सर जी, अगर सर रूट होता, जैसे 1 मतलब रूट ऑफ 3 निकालना है हमें, अंडर रूट 3, √3। तो फिर हम पहले स्क्वायर कर लेंगे, तो हाँ, एक्स हमें स्क्वायर माइनस 3 निकालना है। इक्वल्स टू 0 कर लेंगे ना। ये सपोज कर लो तो x² - 3 = 0, ये इक्वेशन लेनी है आपने, और ये भी ले सकते हो आप। ठीक है। ठीक है सर। अब स्टूडेंट क्या करते हैं कि √3 निकालना है तो यही ले रही है, इसको एफ एक्स कह दिया। अब न्यूटन फार्मूला लिखो तो फार्मूला क्या बनेगा, xn+1 = xn - f, यही हो गया। डेरिवेटिव्स का 1 आएगा तो xn xn कैंसिल हो गया, xn+1 = क्या आ गया, √3। तो इटरेट तो बना नहीं ना। इटरेटिव स्कीम कब बनेगी, जब xn+1 यहाँ पे xn आएगा तब इटरेट बनेगा। अब जो आपने निकालना था वही आ गया, तो फिर यू कैन नॉट प्रोसीड फर्दर विद लीनियर इक्वेशन। दैट्स व्हाई यू मस्ट हैव नॉन लीनियर इक्वेशन। So next example tells us that initial guess is also important in Newton's method. So question है कि using Newton's method find a non-zero root of x = 2 sin x। नॉन जीरो इसलिए कहा है, एक तो जीरो रूट है ही इसका, x = 0 सेटिस्फाई करेगा ना दोनों साइड को। तो इसमें आपने एफ एक्स लिखना है। आप एक साइड में ले जाओ, आप ये लिख सकते हो, उल्टा भी लिख सकते हो 2 sin x - x, बट ट्राई टू अवॉइड डिविजन्स। ये इन चीजों को आपने अवॉइड करना है, डिविजन्स को। बाकी सिंप्लीफाई होके वो सेम ही बन जाएगा लास्ट में। सो डोंट पुट एक्स्ट्रा कैलकुलेशंस, जस्ट टेक एवरीथिंग ऑन वन साइड, प्लस माइनस करके आप, ये आप मेरा एफ एक्स है। आप चेक कर सकते हो, आप इसमें 1 फिट करना, 2 फिट करना, ये साइन चेंज करेगा। रेडियन मोड में रखना कैलकुलेटर को। तो इसका मीनिंग है जैसे आप बाइसेक्शन में करते थे, सो रूट लाइज इन 1 to 2। तो न्यूटन मैथड लगा के देखते हैं। f' चाहिए आपको, सो 1 - 2 cos x। सो न्यूटन्स इटरेशंस आर xn+1 = xn minus fxn/f'(xn). So xn - 2 sin xn, 1 - 2 cos xn। वो आपकी मर्जी है, अगर
एलसीएम लेना हो ले लो, नहीं लेना कोई बात नहीं। अगर एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करना हो, यू कैन डू साइन एक्सन माइनस एक्सन कॉस एक्सन एंड division 1 minus 2 cos xn, and n is a number 0 1 2 3 etc. Okay, so root इसका 1 और 2 में है ना, 1 और 2 में, तो you can take any initial guess in 1 to 2. तो मैं पहले स्टार्ट कर रहा हूँ, लेट अस स्टार्ट विद, अब मैं कोई भी नंबर ले सकता हूँ, लेट अस स्टार्ट विद 1.1 ले लो सर। 1 ले लो, ठीक है सर। मेरे पास आंसर 1.1 के हैं, ठीक है। ठीक है सर। नहीं तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, दोनों से फेल होगा ये, मतलब फेलर का केस है ये। अब 1.1 से किया आपने, तो जो पहला आंसर आएगा आपने फिट कर देना है रेडियन। ये ध्यान रखना है, साइन 1.1 निकालोगे, रेडियन है, डिग्री नहीं है। यू डोंट हैव डिग्री इन ओवर कोर्स, एवरीवेयर रेडियन 1.1, ये रेडियन से निकाल रहे हैं कैलकुलेटर। और नीचे आएगा 1 माइनस 2 कॉस 1.1, इसको सिंप्लीफाई करना। ये पहला आंसर ही है जो 8.453, फिर इसको डालना 8.453 को, जो सेकंड आंसर है दैट इज 5.2। 1 2 में तो पता खैर नहीं लगता, ठीक है। अब थर्ड अगर आप निकालोगे तो वो ड्रास्टिक है, 203.384। इसको फिट करोगे तो 118, इसको फिट करोगे तो -87, तो जिग जैग आंसर है एक्सेट्रा। और अगला आंसर 203 है एंड सो ऑन। तो अब 5 इटरेशन कर लिया, आंसर बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं, रूट 1 और 2 के बीच में है ना, एरर बहुत ज्यादा है, 1 से तो बहुत दूर जा रहे हो ना, 203 118 -87, सो यू आर गोइंग अवे। तो इसका मीनिंग आप कहोगे इटरेशंस डाइवर्जेस, बट रूट तो है 1 और 2 में, है ना, रूट यू कैन चेक। तो फेलर क्यों हो रहा है? देखो डेरिवेटिव का प्रॉब्लम जो मैंने कहा था, तो यहाँ पे डेरिवेटिव क्या था, 1 माइनस 2 कॉस एक्स, ये 0 हो सकता है। कब 0 होगा? जब कॉस एक्स आपका हाफ होगा, और हाफ कब होगा ये? π/3 पे, और π/3 का लगभग कितना होता है? 1.0472। तो जो आपका इनिशियल गैस है वो आप इस पॉइंट से शुरू कर रहे हो जिसमें टेंजेंट लगभग पैरेलल है, क्योंकि इस पॉइंट पे 1 पॉइंट समथिंग पे 1 के आसपास में डेरिवेटिव 0 है। सर कन्वर्ज करवाने के लिए f' 0 होना चाहिए। नॉन जीरो होना चाहिए, ये फर्स्ट कंडीशन है। अब तो डेरिवेटिव सर आपने 0 क्यों पुट किया? मैं तो इसका आंसर दे रहा हूं कि डाइवर्ज क्यों कर रहा है, क्योंकि जो आपने इनिशियल गैस लिया 1.1, उस पे ये डेरिवेटिव 0 है। ठीक है सर। So you cannot use this initial guess. So we cannot use initial guess near 1, as f dash x will be 0. अब रूट 1 और 2 के बीच में है तो आप थोड़ा दूर चले जाओ उससे, है ना। हाँ, सीकेंट लगाओगे तो वो प्रॉब्लम नहीं करेगा, उसमें डेरिवेटिव नहीं है सीकेंट में। अब ये सीकेंट की थोड़ी अच्छी बात भी है, सीकेंट कह लो, दूसरा आपका बाइसेक्शन कह दो, दे डोंट यूज डेरिवेटिव बट दे आर स्लो। तो अब हम थोड़ा आगे चले जाते हैं। आगे मैं कहाँ चला जाता हूँ, लेट अस स्टार्ट विद, मैं दोबारा लिख, लेट अस स्टार्ट विद 1.5। अगर 2 से करोगे तो बहुत जल्दी आ जाएगा आपका आंसर, क्योंकि रूट 2 के पास ही है इनफैक्ट। लेट अस स्टार्ट विद 1.5। तो 1.5 जब फिट करोगे तो पहला आंसर है आपका दैट इज 2.07658। तो देखो आंसर भी वहीं जा रहे हैं, दूर नहीं जा रहे, 200 से नहीं बन रहे। अगला आंसर है 1.910507, ये फिट करोगे तो नेक्स्ट आंसर है 1.895622।
and x4 is 1.895494. So we have 5-digit मैचिंग, और इनफैक्ट अगर आप x5 निकालोगे तो बिल्कुल मैच हो रहा है इससे. सो 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट मैच हो रहे हैं, 7. सो दिस इज द रूट 1.8954 समथिंग. तो अगर आप इस पे बाइसेक्शन लगाते हैं तो आपको हो सकता है 10-15 बार करना पड़ता है, मे बी 15-20 टाइम्स, 15-20 टाइम्स. बट इन न्यूटन्स मेथड यू आर गेटिंग जस्ट in five iterations. So method is very fast, but you have to take care of initial guess. At initial guess, derivative must be non-zero. ठीक है? So in that way you can apply Newton's method. तो ये तो फर्स्ट जो हमने एग्जांपल्स पढ़े हैं इसमें सब में था कि डेरिवेटिव आपका होना चाहिए नॉन जीरो. Now we will take some special cases in next class. What will happen if derivative will be zero? अगले जो केस होंगे, अगर डेरिवेटिव जीरो हो तो क्या होगा, और डेरिवेटिव नॉट डिफाइन हो तो क्या होगा. दो अलग अलग चीजें हैं वैसे. एक तो जीरो हो जाए, अब कई बार ये सॉर्ट आउट हो जाती हैं चीजें. इसमें एग्जांपल पे डिपेंड करेगा कि मेथड लगेगा कि नहीं लगेगा. जैसे आप लिमिट निकालते हो साइन एक्स बाई एक्स व्हेन एक्स गोज टू जीरो, तो वैसे तो आपको लग रहा है ना कि साइन 0/0 डिफाइन नहीं है, बट लिमिट उसका 1 आता है. तो सेम सिचुएशन यहाँ पे है, वो केस टू केस वेरी करेगा. मेथड लगेगा नहीं लगेगा दैट डिपेंड ऑन प्रॉब्लम. और नॉट डिफाइन का मीनिंग अलग चीज है. जीरो का मीनिंग है जैसे अभी हमने एग्जांपल लिखा था, जीरो हो जाए. नॉट डिफाइन का मीनिंग जैसे 1/x आ गया, अगर आपका x जीरो है तो ये डिफाइन नहीं है ना, तो ये केस भी हो सकते हैं. So these are special cases that we will study in next class. Any query? No sir. ठीक है, पढ़ना ठीक है अच्छे से. थैंक यू सर. एक वेबसाइट मैंने बता दी थी तुमको जिसमें नोट्स डाल रहे थे उसमें. Yes sir. Okay, so bye for today.